Good morning, students. I am Iqbal Rasool. Our today's topic is structure and function of the esophagus and structure and the function of stomach. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने वहां पे जो बकल कैविटी को हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज इसोफेगस एंड स्टमक। और ये जो लास्ट में हमने पढ़ा था फेरेंकस। देन आफ्टर दैट जब जो फेरेंकस था, फेरेंकस के साथ अटैच्ड होता है, वहां से जो निकलता है, वहां से जो पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज दैट इज इसोफेगस। This esophagus is a tube-like structure, and this is approximately 24.5 centimeters long. Okay. Now इसके बाद क्या है? ये जो इसोफेगस जो होता है, ये जो फेरेंकस हमने बात की, फेरेंकस के पोस्टीरियर पार्ट के साथ ये अटैच होता है। पोस्टीरियर पार्ट के साथ ये अटैच होता है। आफ्टर दैट इट रन्स टुवर्ड्स द abdomen and it enters into the stomach. Now ये जो esophagus जो होता है, when it runs from the throat to the stomach and it passes through the diaphragm. Where it enters the diaphragm, there is a hole-like structure. This hole-like structure is now known as esophageal hiatus. अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम वापस जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ द इसोफेगस। अगर हम देखेंगे, जब ये ऊपर जब अटैचमेंट होता है फेरेंकस के साथ, और यहाँ से हमारे पास दिस इज अनदर कैनाल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये रेस्पिरेशन के लिए है। दिस इज हियर ट्राइकिया। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक अपैरेट होता है जिसका नाम होता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। दिस स्फिंक्टर is attached with the pharynx, and at the time of swallowing, when the food enters into the esophagus from pharynx, the constrictor muscles of the pharynx and the muscles of the tongue, these contract these push the food into the esophagus. Then after they contract and they do not allow the food to reflux back, and the esophagus remains closed. It remains closed. The upper sphincter remains closed from when not swallowing, when the process is not present. During swallowing it remains open, and after swallowing it becomes closed again. Now the food which enters from buccal cavity to esophagus is known as bolus. On entering this bolus into the esophagus, there is a rhythmic wave-like movement that is known as peristalsis. Due to this peristaltic movement, the food moves towards the stomach. That means from here up to this portion, the food moves by the process of peristalsis. ठीक है, ये जो food होता है, जब when the food enters into the esophagus, there is a movement that is known as peristalsis, and this peristalsis movement is responsible for the flow of food from from the upper part of the esophagus up to the stomach. And in this case, here is the another, that is mucus, which is present in esophagus. This is responsible for lubrication of the food. And at posterior portion, there is another sphincter known as lower esophageal sphincter or gastroesophageal sphincter. This sphincter is responsible for the movement of food. It allows only the movement of food from esophagus to stomach. This only allows the food movement from esophagus to stomach. This gastroesophageal sphincter is also known as cardiac sphincter. ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्या प्रॉब्लम होती है? when this cardiac sphincter or gastroesophageal sphincter does not completely gets closed, ये जब पूरा क्लोज नहीं होता है, कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त वहां से स्टमक से क्या होता है, वहां स्टमक से इफ्लक्स ऑफ फूड आकर्स। ये जो फूड होता है वो वापस बाहर आता है इन इसोफेगस होती है। वहां पे जो प्रॉब्लम होती है जिसका नाम होता है हीट बर्न, और इट इज आल्सो नोन एज GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। The mucosa of esophagus is lined with the epithelium, squamous epithelium. But it is non-keratinized. That is non-keratinized squamous epithelium is present. Also, there is a presence of the cells which are known as basal and parabasal cells. ठीक है? This was about the esophagus. Now we will move towards the stomach. Moving towards the stomach. The stomach has four main parts. Number one, cardiac part. Number two, fundus. Number three, body. Number four, pylorus. These are the four main parts of the stomach. This is the first part here. This is the second part here. This is the third part here. And this is the fourth part which is present here. The cardiac part is the part where esophagus joins with the stomach. This is the first part that is known as cardiac part. Now fundus, this is towards the left of cardia, that is heart. Below the fundus is the main part of the stomach which is known as body. Main part. The fourth part, that is pylorus, which connects body with duodenum. This pylorus is funnel shaped, and this pylorus bears two ends. One end towards the body of the stomach and another end towards the duodenum. And towards the body it is wider, and towards the duodenum it is narrower. The end which is towards the body, that means this area, it is known as pyloric antrum. And the narrower end which is present towards this portion, that is towards duodenum, that means this portion, it is known as pyloric end. And at the point of pyloric end, where there is a pyloric end, there is a sphincter. There is a sphincter which is responsible to prevent emptying of stomach. In the absence of food, this stomach inflates, and it is mucosa and submucosa fall into the
large fold called ruga. The convex lateral side, that is, this is the convex lateral side and this is the concave lateral, this is the concave lateral side. ठीक है, यहाँ पे जो कन्वेक्स लेटरल साइड जो होता है इसका नाम होता है ग्रेटर कर्वेचर, दैट इज नोन एज ग्रेटर कर्वेचर, एंड दिस इज नोन एज लेसर कर्वेचर. ये जो वाल होते हैं, स्टमक के वाल जो होते हैं, दीज आर आल्सो फॉर्म्ड ऑफ 4 लेयर्स, इसमें भी 4 लेयर्स होते हैं. जस्ट लाइक ऑल, यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल में भी 4 लेयर्स होते हैं. इसी तरीके से यहाँ पे इन केस ऑफ स्टमक में भी 4 लेयर्स होते हैं. विद एडेप्टेशन, एडेप्टेशन के साथ ही यहाँ पे जो म्यूकोसा होता है और जो मस्क्यूलरिस होता है, दीज टू विथ रेस्पेक्ट टू एडेप्टेशन, यहाँ पे एडेप्टेशन की वजह से यहाँ पे दीज 2 लेयर जो होते हैं इनकी वजह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. ये जो स्टमक में और एक पार्ट होता है, यहाँ पे जो स्टमकस म्यूकोजल एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है, दे सेक्रेट एन अल्कलाइन म्यूकस, अल्कलाइन म्यूकस. ये जो अल्कलाइन म्यूकस जो होता है, ये जो स्टमकस म्यूकोजल एपिथेलियल लाइनिंग, दीज प्रोड्यूस म्यूकस सेल्स, which in turn secrete alkaline mucus internal covering which protect the stomach. क्या होता है, यहाँ पे जो gastric fetus होते हैं, gastric fetus ये जो होते हैं, ये डार्क सरफेस लाइक होते हैं, डार्क सरफेस ऑन द स्टमक. और यहाँ से स्टमक में क्या होता है, स्टमक यहाँ पे उनकी जो शेप होती है, वो अपीयरेंस होती है, वो पिन कुशन जैसी होती है. उसके बाद दिस इज रेस्पॉन्सिबल, दिस गास्ट्रिक फिटस आर पिन कुशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रीशन ऑफ द गास्ट्रिक जूस. और ये जो गास्ट्रिक फिटस जो होते हैं, these gastric fittings are primarily composed of or formed of mucus cells. और ये जो म्यूकस सेल्स जो होते हैं, जब हम स्टमक की तरफ जाते हैं, स्टमक में हमने 4 पार्ट पढ़े, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. ये जो 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पे जो म्यूकस सेल्स होते हैं इनकी वेरिएबिलिटी होती है इन 4 पार्ट्स में इनकी. और जो ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं, जो गास्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं, दीज आर गास्ट्रिक ग्लैंड्स. These gastric glands possess different types of cells. In all the 4 parts, that is part number first, part number second, part number third, and part number fourth. The cardiac and pyloric part, these possess the gastric glands which only secrete mucus. उसके बाद जो पाइलोरिक एंट्रम जो होता है, it secretes gastric, that which is hormone, which is stimulatory hormone. And it also secretes mucus. उसके बाद जो पार्ट है, डेटिक फंडस एंड बॉडी, ये जो 2 और पार्ट्स हैं स्टमक के, यहाँ पे सबसे ज्यादा लार्जर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, and this is the main part which is involved in case of chemical digestion. और जो ग्लैंड्स है, ये जो गास्ट्रिक ग्लैंड्स है, these possess the variety of the cells. These are of 4 types. 4 types of cells are present. Number 1, parietal cells.
Number 2, mucus cells. Number 3, chief cells. And number 4, anterior endocrine cells. These are the 4 types of cells which are found in the stomach. उसके बाद हम पहले लेंगे that is parietal cells. ये जो parietal cells जो होते हैं, these are primarily present in the middle region of the stomach. Middle region of stomach or middle region of gastric glands. और ये जो सेल्स होते हैं, पैराइटल जो सेल्स जो होते हैं, these are highly differentiated epithelial cells in case of body. These parietal cells are responsible for the production of HCl and intrinsic factor. This intrinsic factor is responsible for the absorption of vitamin B12 in small intestine. Chief cells or chief cells. These are present in the basal region of gastric glands. Basal region of gastric glands. And these chief cells are responsible for the secretion of proenzyme pepsinogen. The inactive form of pepsin. Number 3, mucus neck cells. ये present होते हैं upper part of stomach. And these mucus neck cells produce mucus. This mucus is different from the mucus which is produced by goblet cells. Of surface epithelium. Number next, anterior endocrine cells, which are present in the gastric glands. And these secrete various hormones into interstitial fluid of lamina propria. And these include gastrin, which is released by the G cells. Now here is gastric secretion. This gastric secretion जो है, this is controlled mechanism. This is controlled by nerves as well as by hormones. और उसके बाद क्या होता है, इसमें जो स्टिमुलस जो आती है वो ब्रेन से आती है या हार्मोन से आती है. और उसके बाद जो स्टिमुलस होती है, यहाँ पे हमने जो स्टिमुलस देखी है 3 पार्ट से आती है. डेट स्टमक से आती है, ब्रेन से आती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है. Whether to inhibit or stimulate the function. Whether to inhibit or stimulate the gastric juice production. उसके बाद जो होता है ये 3 phases में होता है.
फर्स्ट फेज सेफेलिक फेज, उसके बाद जो होता है वो गास्ट्रिक फेज है, और द नेक्स्ट थर्ड पोर्शन जो थर्ड फेज है दैट इज इंटेस्टाइनल फेज। उसके बाद पहले हम लेंगे सेफेलिक फेज। सेफेलिक फेज में क्या होता है? सेफेलिक फेज में ये होता है अगर हमें थॉट ऑफ फूड, थॉट ऑफ फूड, ठीक है, थॉट ऑफ फूड के वक्त क्या होता है? थॉट ऑफ फूड के वक्त स्टिमुलेशन होती है, स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ गास्ट्रिक जूस, ठीक है। उसके बाद जो होता है डेट इज लॉस ऑफ एपिटाइट, डेट इज इन केस ऑफ डिप्रेशन। उस वक्त क्या होता है? उस वक्त इनहिबिशन होती है, इनहिबिशन किसकी होती है? डेट इज प्रोडक्शन ऑफ गास्ट्रिक जूस की इनहिबिशन होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है डेट इज गास्ट्रिक फेज। उसके बाद गास्ट्रिक फेज है। इस गास्ट्रिक फेज में भी इसी तरीके से दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्टिवेटिंग पार्ट होता है और दूसरा इनहिबिशन पोर्शन होता है। यहां पे क्या होता है? फर्स्ट पोर्शन दैट इज स्टमक डिस्टेंशन। उस वक्त क्या होता है? वहां पे उस वक्त स्टिमुलेशन होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गास्ट्रिक जूस। और जो दूसरा जो नेक्स्ट पोर्शन जो होता है जब एक्सेस एसिडिटी होती है उस वक्त यहां पे इनहिबिशन होती है। इनहिबिशन ऑफ व्हाट? इनहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गास्ट्रिक जो होता है इंटेस्टाइनल फेज। उस इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है? यहां पे सिर्फ उन दो पोर्शंस में सेफेलिक फेज और गैस्ट्रिक फेज में दो फेज थे, दो स्टेप्स थे, लेकिन यहां पे इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल फेज में एक ही स्टेप है। यहां पे क्या होता है? यहां पे डिस्टेंशन ऑफ ड्यूडेनम होती है, डिस्टेंशन ऑफ ड्यूडेनम। और उस वक्त क्या होती है? उस वक्त इनहिबिशन, सिंपली यहां पे इनहिबिशन होती है। इनहिबिशन किसकी होती है? इनहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गास्ट्रिक जूस। उसके बाद यहां पे हम जो स्टमक में होती है, स्टमक की फंक्शन पे आएंगे। यहां पे हम डाइजेस्टिव फंक्शन देखेंगे, डाइजेस्टिव फंक्शन। यहां पे जो डाइजेस्टिव फंक्शन है ऑलमोस्ट यहां पे सब सारे डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं एक्सेप्ट यहां पे क्या होता है? इंजेक्शन और डिफेसेशन, ये दो प्रोसेस नहीं होते हैं। बाकी जो भी प्रोसेस डाइजेशन में होती है ऑल प्रोसेस आकर इन स्टमक। यहां पे सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लेकिन यहां पर जो एब्जॉर्प्शन होती है यहां पे इन केस ऑफ स्टमक में जो एब्जॉर्प्शन होती है यहां पर भी एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन कौन किन की एब्जॉर्प्शन होती है? यहां पे नॉन पोलर सबस्टेंसेस की एब्जॉर्प्शन होती है, लाइक अल्कोहल एंड एस्पाइरिन, ठीक है। उसके बाद जब हम डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करेंगे यहां पे टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव फंक्शंस आकर। फर्स्ट वन इज दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन और सेकंड वन इज दैट इज केमिकल डाइजेशन। पहले मैकेनिकल पोर्शन लेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन। यहां पे जो मैकेनिकल डाइजेशन की बात करेंगे हम, मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है? व्हेन द बोलस एंटर्स इनटू द स्टमक, जब भी खुराक स्टमक में पहुंच जाता है वहां पे क्या होती है? वहां पे वेव लाइक मूवमेंट स्टार्ट्स जस्ट लाइक पेरिस्टालिसिस, एंड आफ्टर द पेरिस्टालिटिक मूवमेंट विच इज परफॉर्म्ड बाय द स्टमक, एंड वहां पे क्या होता है? वहां पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, these secrete the digestive enzyme which is known as gastric juice,
This gastric juice combines with the food. When this gastric juice combines with the food, then it is known as child. एंड फाइनली दिस ये जो मैकेनिकल पोर्शन में क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ये जो फूड होता है ये मैकेनिकली चर्न होता है, चर्निंग ऑफ द फूड आकर्स इन स्टमक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे है दैट इज केमिकल डाइजेशन। यहाँ पे जो केमिकल डाइजेशन का रोल होता है, पहले केमिकल डाइजेशन पढ़ने से पहले हमने देखा था इन केस ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या हुआ था, वहां पे सिलाइवरी ग्लैंड या सलाइवा, वहां पे जो जूस था वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हुआ था और दिस सलाइवा इज रेस्पॉन्सिबल, वहां से एक एंजाइम निकला था दैट इज सलाइवरी अमाइलेज व्हिच वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स इनटू डाइसैकेराइड्स। एंड दिस ये जो सलाइवा होता है, द फंक्शन ऑफ द सलाइवा, द फंक्शन ऑफ द सलाइवरी अमाइलेज कंटिन्यूज अंटिल इट रीचेस द स्टमक। ये स्टमक तक फंक्शन करता है। ऑन रीचिंग द स्टमक वहां पे क्या होता है, वहां पे इसकी जो फंक्शन होती है, सलाइवा की फंक्शन होती है, वो हाल्ट हो जाती है। और हाल्ट होने के बाद वहां पे सलाइवा, वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो हम जिनको हम कॉम्बिनेशन के नाम पे देते हैं डैश गास्ट्रिक जूस, गास्ट्रिक जूस। नंबर वन, यहाँ पे जो गास्ट्रिक जूस में जो होते हैं वह नंबर वन हम HCl की बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज दैट इट इनएक्टिवेट्स द फंक्शन ऑफ सलाइवा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद क्या होता है, यहां पे एसिडिटी इंक्रीज होती है, acidity gets increased। HCl, यहां पर हम फिर से देखिए जो HCl है लाइक पेप्सिनोजन, दिस पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव एंजाइम और प्रो एंजाइम। ये जो पेप्सिन होता है ये एक्टिव हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड इट फॉर्म्स पेप्सिन। दिस पेप्सिन इज नाउ एक्टिव एंजाइम। दिस पेप्सिन इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम and it converts proteins into proteoses and peptones. Here is the pepsin। ठीक है, यहां पे क्या होता है, स्टमक में मोस्टली जो डाइजेशन होती है वो डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स आकर्स, यहाँ पे जो डाइजेशन होती है। लेकिन यहाँ पे जो HCl का रोल है, HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिड है हाईली एसिडिक। दिस हाईली एसिडिटी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.6 यहाँ पे pH होता है। दिस pH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर what, for the function of, for the conversion of pepsinogen into pepsin, and after that when the pepsin is formed, this pepsin at the pH this converts the protein into proteases and peptones। यहाँ पे जो हमने जो pH की बात की, दिस pH that is 1.6, लेकिन ये अगर हम वैल्यू देखें NCERT का वैल्यू है that is 1.8, यहाँ पे इसका वैल्यू होता है which is optimum for the function of pepsin to convert protein into proteases and peptones। उसके बाद और एक अगर हम इन्फेंसी की बात करेंगे, इन्फेंसी में क्या होता है, इन्फेंसी में ज्यादातर जो ह्यूमन्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं मिल्क पे, और जो ये मिल्क होता है उस वक्त इनके साथ इन्फेंसी वहां पे प्रोरिनिन जो होता है, प्रोरिनिन इज इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव और प्रो एंजाइम, and this prorenin also gets activated by HCl and it forms renin। this renin is now active enzyme। okay, उसके बाद renin का रोल क्या होता है, this renin is responsible for curdling of the milk
It is also responsible for the digestion of the milk protein. उसके बाद जो दूसरा होता है वो क्या है, डेट इज म्यूकस। ये जो म्यूकस होता है इन कॉम्बिनेशन विद बाइकार्बोनेट्स, उनकी क्या फंक्शन होती है, उनकी फंक्शन होती है प्रोटेक्शन टू इंटरनल कवरिंग ऑफ स्टमक। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग स्टमक को होती है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय म्यूकस इन कॉम्बिनेशन विद बाइकार्बोनेट्स। यहाँ पे ये प्रोटेक्शन किस लिए होती है, यहाँ पे जो HCl जो होता है एसिडिटी है, टू प्रिवेंट द एसिडिक इफेक्ट ऑफ द HCl देयर इज अ मेम्ब्रेन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन कोटिंग विद बाय म्यूकस इन कॉम्बिनेशन विद बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, उसके बाद जो होता है टू सम एक्सटेंट यहाँ पे लाइपेसिस की प्रेजेंस होती है। लाइपेसिस, दीज लाइपेसिस जो होते हैं, लाइपेसिस आर द एंजाइम्स व्हिच कन्वर्ट द फैट्स इनटू, लाइपेसिस एक्ट ऑन द फैट्स and these get converted into the fatty acids। ठीक है, ये जो हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे, उसके बाद जो खुराक होगा, जहाँ पे जो स्टमक में जो भी अब खुराक होगा वो अब एंटर हो जाएगा ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में क्या होगा, या उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या होगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। Thus we here conclude our today's topic। Allah Hafiz।